Very good morning. So, in from past two classes, we are just discussing about diversity. What is diversity? Why there is so much of differences among the people, and all these things. No two people are same. They are different in their habits. They are different in their likings. Right? They are similar also. They are different also. Right? So ये जो चीजें हैं, this is very very commonly observed and found in our country, especially India. It is a country of diversities, right? हमारी जो country है, it is a country of diversities. How we speak different languages, we have a different type of food, we celebrate different type of festivals, we practice different religions, right? And these all things are different. ऐसा क्यों है भाई? हम लोग की कंट्री तो एक ही है ना, तो common things should be there. Why so much of differences is there? Right? होता क्या है कि पहले भी when these modes of transport were not so developed, say आज से 300-400 years पहले, when the trains were not there, aeroplanes were not there, these cars and other modes were not there, how the people traveled? They traveled from one place to another on foot, or on horses, or on camels, or you can see the animals were used, right? Even they could travel, right, in the ships also. Some boats जरूर बना लेते थे ये, और वो उससे भी they used to travel from one place to another. Now what happened when they traveled to other places, for the new places, in search of new places? See, humans जो है शुरू से adventurous रहे हैं, हम लोग हमेशा से adventurous रहे, तो they always wanted to search for new places. So when they went to the new places, अब ऐसा तो है नहीं कि आज की तरह कि हम गए घूमने, 2 दिन के बाद हम वापस आ गए, हम 3 दिन के बाद वापस आ गए अपने घर में. पहले, as I said, कि when the modes of transport were not there, तो लोग अगर जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, चाहे फुट पे जा रहे हैं, चाहे एनिमल्स पे जा रहे हैं, तो ट्रैवलिंग में बहुत टाइम लगता था, right? Traveling time was very much, I mean, it used to take so many of, you can sometimes the months even, to travel from one place to another. अब अगर बंदा इतना ज्यादा ट्रैवल करके जाएगा तो वहां एक दिन रुक के तो वापस नहीं आएगा, right? That person will not stay for a day and he will plan to return. तो वो वहां पर सेटल हो जाते थे, इन द सेंस वहां पर वो रहना शुरू कर देते, right? It's not only because of in search of new places कि भाई एडवेंचरस है तो एडवेंचरस में मैं घर बार छोड़ के चले जाएंगे. समटाइम्स अदर फैक्टर्स वर आल्सो देयर. कोई फेमाइन आ गया है, ड्रॉट है, कोई फ्लड प्रोन एरिया है, अर्थक्वेक से खराब हो गया है, तो what they do, they will prefer to move to those areas which are not the natural disaster prone areas. So वहां प्रेफर करेंगे. आई मीन कोई भी रीजन है, चाहे वर्क है, अब उस समय एजुकेशन वाला रीजन तो हम नहीं ले सकते हैं, बट हमने हिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ा था कि द पीपल यूज ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और अभी भी यू कैन से, अगर हम 2-3 साल पहले, 100 साल पहले की बात करें, तो दे यूज टू ट्रैवल फॉर द वर्क, फॉर द जॉब्स, because of these natural disasters, in place, or you can say for looking or searching the new areas, whatever XYZ reasons were there, people used to travel. They used to travel. उतना ज्यादा लंबा रास्ता ट्रैवल करके जाते थे, वहां जाके रहना शुरू कर देते थे, राइट? तो अब वहां जाके क्या करते थे? समवेयर दे यूज्ड टू मेक टेम्परेरी सेटलमेंट्स, और कई बार वहां पे दे मेड होम्स आल्सो टू सेटल देयर, राइट? तो अब होता क्या था कि वेयर एवर दे हैव गॉन, अब ऐसा तो है नहीं कि उनको अपने जैसे ही सारे लोग मिलेंगे. अब सपोज इफ आई से कि आप साउथ में चले जाते हैं, राइट? साउथ में इस टाइम भी आपको कल्चर कितना डिफरेंट लग रहा होगा, बट ऑब्वियस लैंग्वेज है, कल्चर, सब कुछ है, डिफरेंट है. अब ये सोचो कि आपको ओके, आई से कि एग्जांपल, तमिलनाडु का मैं लूं, तो आपको तमिल नहीं आती, उनको पंजाबी नहीं आती. अब आप कम्युनिकेट कैसे करोगे?
अगर तो आपने 1-2 दिन के लिए रहना है तो चल जाता है, कोई बात नहीं, नहीं भी करेंगे कम्युनिकेट तो क्या फर्क पड़ता है, हमने घर ही चले जाना। बट इफ यू हैव टू स्टे देयर फॉर लॉन्ग टाइम और यू से कि यू गॉट सेटल देयर, अब अगर जॉब के टाइम के चक्कर में आपकी जॉब लग जाती है वहां चेन्नई में, राइट, अब आप क्या करेंगे? अब आपको तो तमिल आती नहीं है, अब उनको पंजाबी आती नहीं है, अब आपके जो कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो तमिलियंस, अब आप क्या करेंगे? यू विल ट्राई टू लर्न तमिल। अब आप जब तमिल लर्न करेंगे तो आप पंजाबी स्टाइल में लर्न करेंगे। आप टिपिकली तमिल नहीं बोल पाएंगे, दैट विल बी आई मीन जैसे कि पंजाबी टच उसमें आएगा। एक नए तरीके की लैंग्वेज शायद डेवलप हो जाए जिसमें तमिल भी है, पंजाबी भी हो सकती है। अब सेकेंडली क्या होगा कि योर कलीग्स आर देयर। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप ही अपने आप को बेचारों ने बदल लिया, पूरा इन्होंने सीख ली तमिल और दे हैव बिकम द पार्ट ऑफ दैट कल्चर। यू विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस योर कलीग्स। आपके कलीग्स को आप में कुछ अच्छा लगेगा, हो सकता है आपकी लैंग्वेज अच्छी लगे, हो सकता है आपका खाना अच्छा लगे, आपके कपड़े अच्छे लगे, कुछ भी अच्छा लग सकता है। दे विल ट्राई टू गेट इन्फ्लुएंस्ड, आई मीन आप इनको इन्फ्लुएंस करेंगे, दे विल ट्राई टू इमिटेट, उसको हो सकता है फॉलो करना शुरू कर दें। धीरे धीरे क्या हो सकता है, अ न्यू चेंज विल बी देयर। शायद कुछ ऐसा एक ड्रेसिंग स्टाइल डेवलप हो जाए दैट विल बी अ मिक्सचर, अ फ्यूजन ऑफ पंजाबी एंड द तमिलियन कल्चर। एक आपको बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, म्यूजिक में आप लोग म्यूजिक बहुत सुनते हो, आप लोग सुनते हो रैप, राइट? रैप म्यूजिक जो है ये कोई ओरिजिनल क्रिएशन नहीं है, ये क्या है, इट्स अ फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स 2-3 म्यूजिक कल्चर्स को जब मिक्स किया जाता है तो ऐसा एक नया रिजल्ट जो है वो आ जाता है, राइट? इट्स नॉट देयर ओनली इन म्यूजिक, राइट? अब अगर लैंग्वेज की बात करें ना, तो आपने क्लास 7th में सॉरी आप व्हेन यू विल बी मूविंग टू क्लास 7th यू विल स्टडी अबाउट द मुगल्स, राइट? कि मुस्लिम्स जो थे हमारी कंट्री में आए, वो अपने साथ लैंग्वेज लेकर आए, दैट वाज पर्शियन, राइट? उनकी लैंग्वेज थी पर्शियन। दे केम टू इंडिया, यहाँ पर वो सेटल हो गए और यहाँ का कल्चर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया। कैसे? अब एक गुरुद्वारे के ऊपर जो डोम बना होता है ना, दैट इज ग्रीक कल्चर हमारे पास आया, वहां से लिया हमने। घर में आर्क्स बने होते, कई कईयों के ड्राइंग रूम्स आप लोगों के ऐसे होंगे जिसमें दिस शेप विल बी देयर, ये शेप, ये आर्क होता है, इट्स अ रोमन आर्क, राइट? तो क्या हुआ कि बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में लोग आते रहे और इस ढंग से उन्होंने हमारे कल्चर को इन्फ्लुएंस किया। अब हमारे कल्चर को तो इन्फ्लुएंस किया, दे आल्सो गॉट इन्फ्लुएंस्ड। अब मैं पर्शियन लैंग्वेज की बात कर रही थी कि दिस लैंग्वेज वाज ब्रॉट बाय द मुस्लिम्स हियर, और जब ये यहाँ पर आई, हिंदी के कुछ वर्ड्स या कह सकते हैं हिंदी के साथ मिक्स हुई, तो पर्शियन और हिंदी मिलकर बनी उर्दू लैंग्वेज, राइट? हिंदी और पर्शियन मिलकर बन गई उर्दू लैंग्वेज। ऐसे ही कितने सारे कल्चर्स जो थे वो बने। इट वॉज एन इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर, राइट? इट इज ऑलवेज द इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर, बीट अ रिलीजन, बीट अ म्यूजिक, बीट अ डांस, राइट? अब कंटेम्पररी डांस जो होता है वो क्या होता है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ मेनी ऑफ द डांसेस, राइट? हिप हॉप है, हिप हॉप जो है वो भी नो डाउट ये वहां का बेशक ओरिजिनल है, बट इसमें भी कई इन्फ्लुएंस वहां की जो लोकल जो कल्चर है उससे ये हिप हॉप जो है ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अब कई ऐसे डांस फॉर्म्स हैं विच आर इन्फ्लुएंस बाय कथक। हमारी कंट्री में कथक डांस जो है बड़ा एक ओरिजिनल डांस फॉर्म है, सो मेनी ऑफ द फॉरेन डांस फॉर्म्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस कथक। तो इस फ्यूजन से हमेशा ही एक नया कल्चर जो है वो स्टार्ट हुआ है, राइट? इट्स इंटरमिक्सिंग ऑफ द कल्चर, राइट? शायद यही रीजंस हैं कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी जो है वो हमारी कंट्री में एटलीस्ट देखने को मिलती है। और इन डाइवर्सिटीज का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है ये भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि जोग्राफिकल कंडीशंस जो होती हैं वो डिफरेंट होने से हमारी लाइफ के ऊपर क्या पड़ता है असर। लाइक माउंटेन एरियाज हैं, वहां पर लोगों की लाइफ अलग क्यों है, प्लेन एरियाज में अलग क्यों है, दैट वी विल स्टडी। बट उससे पहले आई वुड लाइक यू पीपल टू सी वन वीडियो, राइट?
different colors started having a quarrel with each other. First, green color started saying, I am the best color because I am the basis for all the different trees and plants. If I am not there, nobody can eat, nobody will survive. Blue color said, what are you saying? I am the color of the water, of the oceans, of the rivers, and of the sky. If I am not there, then how will practically anyone exist? Because without water you cannot stay. Red color said, well, I am the best. None of you are the best because I am the color of the sun and the moon and the of warmth. If warmth of the sun is not there, how can anyone survive? At that point, Orange said, well, I am the best because I am the color which is pervading within so many fruits like papaya, like oranges, like carrots, and I carry the most powerful vitamins. If I am not there, how will anyone survive? Purple spoke up, I am the best amongst everybody because if I am not there, how will there be variety in the colors? And how will the flowers look so attractive? And therefore, I am the best. Indigo said, forget all of you. I am the best amongst everybody because I give the contrast by which all other colors can actually manifest. And in this way, the quarreling went on. At this point, the rains started showering heavily, and the rain god spoke. Well, all of you are fighting with each other on who is the best. Let me tell you that each one of you is the best, but all of you need to come together and create a medley of colors called the rainbow. Each one will have its unique qualities and characteristics, but when they all come together, they create unity in diversity. So you have seen in this video how everyone is different, but everyone is unique in his or her form, right? Everyone is special, हर कोई special है, हर कोई unique है, right? So हम इस base पर कि the other person is different from us and we start discriminating that person, so that is not good. That goes against the interest of the people, right? So these diversities are there. आपने वीडियो में भी देखा कि किस ढंग से everyone was saying कि नहीं, I am the superior, I am the superior. But yes, ultimately the thing is everyone is superior, everyone is great, and the matter is that we should respect that diversity. We should respect that the other person is different from us. आप किसी को अपने हिसाब से थोड़ी चला सकते हो, राइट? वो अलग है, आप अलग हो, आपने रिस्पेक्ट करनी है उसकी कि यस, ही इज हैविंग हिज ओन आइडेंटिटी, ही इज अ डिफरेंट वन, आई एम अ डिफरेंट वन. So I am respecting you for your differences, you respect me for my differences. What's wrong? Problem कहाँ आती है? When we start discriminating the people on the basis of this diversity. वो किसी और रिलीजन का है तो मैं उससे अच्छे से बात नहीं करूंगा, वो किसी और कास्ट का है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है. Why? Why it happens? और ये जो एक एटीट्यूड होता है कि having the differences or treating the people differently on the basis of this diversity, that you can say leads to, or that is an indicator of an unhealthy society. वो हमारी एक अनहेल्दी सोसाइटी का इंडिकेटर होता है जब लोग जो हैं वो इन बेसिस पे डिफरेंसेस करना शुरू कर देते हैं, दैट आई एम सुपीरियर,
My religion is superior, whereas you are not superior. Your religion, your caste, your appearance, your dress, everything is not suitable. You are not superior. You are inferior to me. जब ये thinking आ जाती है, तो that is an indicator of unhealthy society. I'll share one more video with you people. What is diversity? Sometimes it's what you see. Gender, skin color, age, physical abilities. Sometimes it's what you don't see. Religion, gender identity, sexual orientation, values, beliefs, personality. Our differences define us, allow us to make unique contributions, make life interesting. In administration and planning, we're opening up to embracing diversity, demonstrating respect, creating a welcoming environment, working together. Working together. Right, so now I think the concept of diversity, it is very clear to you people, right? So in tomorrow's class, what we are going to do, that tomorrow we will cover 2 case studies. We will take two areas, and we will just talk about how the climate is affecting the culture of these places, or how the climate is leading to such much of diversity in these 2 areas.